Good morning, students. Myself Sarika Joshi. Today we will start business study class 12th. आज हम पेज नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम कल का रिवाइज करेंगे। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। रियल लाइफ में हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, इसे कहते हैं मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 12th क्लास में पढ़ते हैं, आप अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं। जैसे आप सुबह कब उठते हैं, आपको कब स्कूल जाना है, कब ट्यूशन जाना है, इसी को हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resources in the changing environment. मैनेजमेंट ये प्रोसेस है कि रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनका वेस्टेज भी ना हो और वह टाइम पीरियड में अपने ऑर्गेनाइजेशन को अचीव भी कर सकें। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स का फर्स्ट पॉइंट है प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। प्रोसेस मीनिंग गोल अचीव करना, इफेक्टिव मीन्स एंड रिजल्ट, और एफिशिएंसी मीन्स कम से कम समय में अपने टास्क को कंप्लीट करना। एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट: फर्स्ट, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। सेकेंड, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। Third, management is a group activity. Fourth, management is a dynamic function. Fifth one, management is an intangible force. Page number 9, objectives of management. Management seeks to achieve certain objectives which are the desired result of any activity. They must be derived from the basic purpose of the business. In any organization, there are different objectives and management has to achieve all objective is an effective and efficient manner. Objective can be classified into organizational objectives, social objectives, and personal or individual objectives. First one, organizational objective. Management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders including shareholders, employees, customers and government. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantages, that is to fulfill the economic objectives of a business. These are survival, profit and growth. Survival: the basic objectives of any business is survival. Management must strive to ensure the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. Profit: mere survival is not enough for business. Management has to ensure that the organization make a profit. Profit provides a vital incentives for the continued successful operation of the enterprises. Profit is essential for covering cost and risk of the business. Last one, growth. A business needs to add to its prospects in the long run. For this, it is important for the business to grow. To remain in the industries, management must exploit fully the growth potential of the organization. Growth of a business can be measured in terms of sales volume, increase in the number of employees, the number of product, or the increase
in capital investment, etc. There can be other indicators of growth. ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को हम उद्देश्यों तक पहुंचा सकते हैं। अब हम फर्स्ट वन पॉइंट पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसको हम थोड़ा हिंदी में और डिटेल में समझेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। ह्यूमन जो मटेरियल रिसोर्सेज का यूज़ कर सके टू देयर बेस्ट एडवांटेजेस फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। फर्स्ट वन है सर्वाइवल, सेकंड वन है प्रॉफिट और थर्ड वन है ग्रोथ। फर्स्ट वन है सर्वाइवल। किसी भी एंटरप्राइजेस में मोटिव होता है कि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई न्यू कंपनी मार्केट में एंटर हुई, उस कंपनी के बारे में किसी को पता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट मैनेजमेंट कैसे हेल्प करती है, या मैनेजमेंट कैसे इम्पोर्टेंट रोल करती है, या मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि बिजनेस इनफ रेवेन्यू को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड वन है प्रॉफिट। सो डू यू थिंक किसी भी एंटरप्राइजेस को मार्केट में सर्वाइव करना ही इनफ है? सो बेसिकली मैनेजमेंट यह तय करती है कि वो मार्केट में सर्वाइव करने के साथ साथ प्रॉफिट अर्न कर सके, क्योंकि वो अपने कॉस्ट को और रिस्क को कवर कर सकते। थर्ड वन पॉइंट है ग्रोथ। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें जितना प्रॉफिट इम्पॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए उतनी ही ग्रोथ भी ज़रूरी है। अगर प्रॉफिट होगा तो हमारे बिजनेस की ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। सेकंड वन है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज business or non-business, has a social obligation to fulfill. This refers to constantly creating economic value for various constituents of society. This includes using environmental friendly method of production, giving employment opportunities to the disadvantaged section of society, and providing basic amenities like school and crèches to employees. The box given below illustrate how a company can fulfill its social responsibility. Second one, social objective means सामाजिक उद्देश्य। सो आज जो बिजनेस होता है वह सोसाइटी की रिसोर्सेस आउटपुट प्रोड्यूस कर सके, उस आउटपुट में प्रॉफिट अर्न कर सके। सो यहाँ पर बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बिजनेस की सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है कि वो सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक टर्म्स, ताकि जो सोसाइटी है, एटमॉस्फेयर है, वो ख़राब ना हो सके, जो सोसाइटी में रह रहे हैं। थर्ड वन पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। Organizations are made up of people who have different personalities, backgrounds, experiences, and objectives. They all become parts of the organization to satisfy their diverse needs. These vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development. Management has to reconcile personal goals with organizational objectives for harmony in the organization. थर्ड वन पॉइंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको अपन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं। सो अब तक जितना भी पढ़ा है, जो भी एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है तो उनका पर्पस होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना। जो उनका मेन रीज़न होता है वो डिफरेंट होता है। मैनेजमेंट का यहाँ जो रोल आता है, मैनेजमेंट को इंश्योर करे कि जब मैनेजमेंट में डाइवर्स नीड सेटिस्फाई हो सके, जैसे
फर्स्ट वन है फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स या हायर लेवल नीड्स।